میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، میں کمرے میں آ گئی اور کنڈی لگائی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، درد اور تکلیف کے مارے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اس لمحے کتنی اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں اپنی زندگی میں 4 مرتبہ اس دردناک منظر کو جھیل چکی تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ منظر کتنا سہانے روح ہوتا ہے، یہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ بھی اسی حالت میں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی اور میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت کچھ بولتی جا رہی تھی، میری منتیں کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے اس پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کروں، لیکن میں نے جو ٹھان لی تھی وہ مجھے کرنا ہی تھا۔ یہ آخری موقع تھا اس سے چھٹکارا پانے کا، اور یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے سامنے تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے جان دے دی۔ تب جا کر میرے دل کو کچھ قرار آیا اور میری دلی مراد پوری ہوئی۔ اس سے پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے کو پردیس بھیج دیا تھا تاکہ میں اپنی بہو سے چھٹکارا پا سکوں، لیکن اسے غسل دیتے وقت جب میں مگر مچھ کے آنسو بہا رہی تھی اور میرے آنسو اس کے چہرے پر گئے تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی ہے۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میرا چھوٹا سا گھر برقی کموں سے سجا ہوا تھا، تمام رنگوں کی رنگ برنگی روشنی برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں اور گانا گا رہی تھیں۔ گاؤں کی باقی خواتین میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ تقریباً سبھی لوگ خوش تھے اور خوشی کا سما تھا۔ کافی عرصے کے بعد گاؤں میں ہونے والی یہ شادی سب کے لیے مسرت کا باعث تھی، سوائے میرے۔ آج میرے اکلوتے بیٹے سرفراز کی شادی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سرفراز کی شادی کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، لیکن آج میرے سارے کے سارے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ میں سرفراز کی شادی اپنی بھانجی روبینہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن اچانک ہی سرفراز میرے پاس آیا، میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے التجا کی کہ ماں، مجھے اپنے پاس والے گاؤں کی ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جس کا نام سائرہ ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا رشتہ لے کر سائرہ کے گھر جائیں۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا سرفراز، میں روبینہ کو بہو بنانا چاہتی ہوں، سائرہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے غصے سے کہا تو سرفراز مجھے کہنے لگا اگر آپ میرا رشتہ لے کر نہیں جائیں گی تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے روبینہ سے ہرگز شادی نہیں کرنی اور نہ ہی وہ مجھے پسند ہے۔ سرفراز کی اس دھمکی سے میں ڈر گئی تھی کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور کمانے والا واحد فرد تھا۔ گھر میں میری 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں جو ابھی شادی کی عمر کو ہونے والی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ اگر سرفراز گھر چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا اور میری بیٹیوں کی شادیاں کہاں سے ہوں گی۔ اسی پل مجھے سائرہ سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی کیونکہ اس لڑکی نے میرے سارے کیے کرائے پر نہ صرف پانی پھیر دیا تھا بلکہ میرا بیٹا ایک دم سے اپنے قابو میں کر لیا کہ وہ آج میرے مقابل کھڑا تھا اور گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ حالانکہ میرا بیٹا بہت فرما بردار تھا، لیکن آج اس کا الگ ہی روپ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جذباتی ہونے کی بجائے عقل سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ آرام سے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں کل ہی سائرہ کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جاتی ہوں۔ میں فوراً اس کی بات مان چکی تھی، لیکن میرا دل سائرہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں اگلے دن اپنے بیٹے کا رشتہ سائرہ کے گھر لے گئی۔ ان کا گھرانہ بہت سیدھا سا تھا، بہت غریب تھے وہ۔ مجھے دیکھ کر بہت الجھن ہوئی کیونکہ میں بالکل بھی غریب گھر کی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری بھانجی روبینہ اچھے خاصے ذمہ دار کی بیٹی تھی اور اس کے باپ نے اس کے نام پر کافی زمینیں بھی کر رکھی تھیں۔ روبینہ کی ماں شائستہ یعنی میری بڑی بہن کی شادی ایک ذمہ دار سے ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شائستہ کی قسمت مجھ سے اچھی تھی، وہ امیر گھرانے میں بیائی گئی تھی اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر روبینہ کی شادی سرفراز سے ہو گئی تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شائستہ اور روبینہ کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے بیٹے کے لیے فوراً ہاں کر دی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سائرہ کو سرفراز کی زندگی سے نکلوا کر ہی رہوں گی اور ہر حال میں روبینہ کو اپنی بہو بناؤں گی۔ روبینہ میرے لیے ایک سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھی اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج سائرہ میرے گھر کی بہو تو بن گئی تھی لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شادی کے 2 دن بعد ہی سائرہ نے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور سگر لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا جو سائرہ کے پاس نہیں تھا۔ میں نے سالہ سال سے زندگی غربت میں گزاری تھی، جیسے تیسے کر کے میں نے ساری عمر غربت میں گزار دی، لیکن اپنی تینوں بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنا چاہتی تھی، اپنی بیٹیوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں روبینہ کو ضرور اپنی بہو بناؤں گی۔ روبینہ سائرہ کے مقابلے میں کم صورت تھی اور اپنے باپ پر گئی تھی، سانولی تھی، لیکن اسے سرفراز سے محبت تھی بچپن سے۔ اس کی یہ محبت میرے لیے فائدے میں گئی تھی۔ خالہ وعدہ کریں اس لڑکی کو گھر سے نکلوا کر رہیں گی، میں سرفراز سے محبت کرتی ہوں اور ساری عمر اس کے نام پر بیٹھنے کو بھی تیار ہوں۔
सरफराज की शादी के दिन रुबीना ने मुझसे कहा तो मैं मुतमईन हो गई थी, यानी कि वो अभी भी सरफराज से शादी करना चाहती थी। सायरा अपने साथ जहेज की कोई चीज नहीं लाई थी। ये देखकर मेरा खून जल रहा था। सायरा सोमो सलात की पाबंद, कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन मुझे ये सब इसकी मुनाफकत लगती थी। अचानक ही वो उम्मीद से भी हो गई, तो मेरा दिल तो बैठ ही गया था। गांव में कुछ लड़के दुबई कमाने के लिए जा रहे थे, तो मैंने भी सरफराज से कहा कि वो भी चला जाए। अम्मा, मैं पाकिस्तान में रहकर कोई काम कर लूंगा। सरफराज जाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी बीवी उम्मीद से है और तुम अपने बच्चों की खातिर कमाकर पैसे भेजोगे, तो तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे और तुम्हें अपनी 3 बहनों की शादियां भी तो करनी है, भूलो मत। मैंने इसे समझाया तो वो मेरी बात मान गया और दुबई चला गया। अब मैं आजाद थी। सायरा के साथ जो सलूक करना चाहती थी कर सकती थी। इन महीनों में मैंने इससे बहुत ज्यादा काम करवाया ताकि इसका बच्चा जाया हो जाए और वो मर जाए, लेकिन वो इतनी सख्त जान वाकिया हुई थी कि इसने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था और खुद भी सेहतमंद थी। ये देखकर मेरा खून मजीद जल गया। सिर्फ यही नहीं, इसने बेटा पैदा किया था, यानी इसकी पोजीशन मजबूत हो गई थी। अब मैं चाहकर भी इसे इस घर से नहीं निकलवा सकती थी। मुझे दिन रात ये सोच सोचकर परेशानी लगने लग गई थी। सायरा मुझे एक आंख नहीं भाती थी और सरफराज दुबई से अपने बेटे के लिए तोहफे तहाइफ भिजवा रहा था। यही नहीं, इसने पैसे भी भेजे और कहा कि ये पैसे इसके बच्चे के खर्च के लिए हैं। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। ये सोच सोच करके अब सरफराज जो भी कमाएगा वो सायरा और इसके बच्चों पर खर्च होगा। सायरा को इस घर से निकलवाने का एक ही तरीका था कि वो मर जाती और इसकी मैयत इस घर से जाए। जिंदा तो इसका घर से निकलना मुझे मुमकिन नहीं लग रहा था। सरफराज कुछ महीनों के लिए वापस आ गया। इसका बेटा 6 महीने का हो चुका था। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो अपना सारा वक्त सायरा और अपने बेटे के साथ गुजारने लगा और सारा खर्च इन पर करने लगा। मेरी तो बर्दाश्त ही जवाब दे गई थी। बेटा, तुम्हें वापस नहीं जाना। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें पैसा कमाने के लिए वापस जाना होगा। जब मैंने देखा कि सरफराज का दोबारा दुबई जाने का इरादा नहीं है, तो मैंने कहा, अम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं जाना चाहता। इस साल यहीं रहना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में ही कोई काम करूँ, क्योंकि अब मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पा रहा। मेरी बहू फिर से उम्मीद से हो गई। मेरा तो सर ही चकराने लगा। तुम्हारी 3 बहनें बैठी हैं, इनकी शादियां करनी है, इनका जहेज जोड़ना है। मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी मेरी तरह एक एक चीज के लिए सिसकती रहें। तुम कमा कर लाओगे तो इनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, वरना वो किसी मोची की बीवी बन जाएंगी मेरी तरह। मैंने रोते हुए जज्बाती हमला किया तो सरफराज पिघल गया और दोबारा से परदेश जाने के लिए राजी हुआ। तो मैं खुशी से सरशार हो गई। मेरे पास अब आखिरी मौका था। इस बार अगर फिर सायरा बच गई और इसने बेटा पैदा कर दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैंने पिछली बार गलती की थी कि डॉक्टर को बुलाया। इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी। देखते देखते सारा की जिंदगी का वक्त करीब आ गया। इस बार मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसका दर्द बढ़ने लगा तो मैं बहाने से बाहर चली गई। बिला वजह देर तक वापस आई तो रात के 10 बज चुके थे। सायरा बेटा, अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है और कोई दाई भी मुझे नहीं मिल रही। मैंने वापस आकर सायरा से कहा, जो दर्द में बिलबिला रही थी, चाची कुछ करिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। जल्दी से डॉक्टर को या किसी को बुला कर लाएं। सायरा चारपाई पर लेटी हुई थी और दर्द से चारपाई के कोने पर मुक्के मारती जा रही थी। वो शदीद तकलीफ में थी और इसे इस तकलीफ में देखकर मुझे राहत महसूस हो रही थी। बेटा, मैंने हर जगह देख लिया है, कोई भी नहीं है, ना डॉक्टर ना कोई ताई। मैं ऐसा करती हूँ, खुद तुम्हारी डिलीवरी करती हूँ, मैंने कहा और इसके करीब आकर खड़ी हो गई। तो इसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। चाची, खुदा का वास्ता ऐसा ना करो, ये बच्चा मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। आपसे ये सब नहीं हो पाएगा, जाएं और किसी को बुला कर आएं। मैं तो उठने के काबिल भी नहीं हूँ, इसने दर्द से रोते हुए कहा। मैंने कमरे की कुंडी लगा ली और इसके करीब आ गई। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तुमको मैं तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जब तक तुम मरोगी नहीं, हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। जो भी मेरा बेटा कमा कर ला रहा है वो तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर खर्च कर रहा है। मैं और मेरी बेटियां तो बस इसकी शक्ल ही देखती रह जाती हैं। हमें कुछ नहीं मिलता। मर जाओ ताकि हमारा हिस्सा हमें मिले। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा और वो हैरत से मुझे तकने लगी। ऐसा क्यों बोल रही हैं चाची? सरफराज तो आपको आपका खर्चा पूरा देते हैं। आप मुझे क्यों जान से मारना चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चाची, मुझे बचा लें। इसने रोते हुए मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी। इसे इस हालत में देखकर मेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। इस तस्कीन को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने देखा दर्द के मारे इसका चेहरा सबस पड़ गया था। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो नहीं बचेगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसकी डिलीवरी का केस बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन के बगैर इसे बच्चा नहीं होगा और अगर ऑपरेशन के बगैर बच्चा हुआ तो सायरा मर जाएगी। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। मैंने इस राज को अपने दिल में दफन कर दिया था और यही चाहती थी कि जिंदगी का वक्त आए तो सारी रात तड़प तड़प कर मर जाए। इसमें खून की कमी थी। इसका सफेद खून बिल्कुल खत्म हो चुका था।
अगर इसके अंदर सफेद खून ना डाला गया तो मर जाएगी। यही बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी और इसे इस वक्त सफेद खून की जरूरत थी। मैंने इसकी डिलीवरी करवानी शुरू कर दी। वो दर्द से निढाल होकर शायद बेहोश हो गई थी। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा भी मुर्दा था। मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि सायरा अब जिंदा नहीं रही। मैंने इसकी सांसें चेक की। इसकी सांस मुझे महसूस नहीं हुई, अलबत्ता नब्ज हल्की सी चल रही थी। नब्ज तो काफी देर तक चलती रहती है, लेकिन इसको सांस नहीं आ रही थी। मैं खुशी से निढाल हो गई कि वो मर चुकी है। मैंने कमरे की कुंडी खोल दी और बाहर निकलकर रोना धोना ववेला मचाना शुरू कर दिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया मेरे रोने पर। गांव वालों ने देखा तो इनमें से एक ने कहा कि ये मर चुकी है। फिर सफे मातम बिछ गई। गर्मियों के दिन थे, जल्दी सुबह हो गई थी और फजर की अजान होते ही हमने इसे नहलाना शुरू कर दिया। मैं मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। इसे नहलाते हुए जब मेरे आंसू इसके चेहरे पर पड़े तो मैंने देखा इसके जिस्म में हरकत हो रही है। हैरत से मेरे सर पर जैसे आसमान गिरा था और पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो जिंदा है, गौसल देने वाली औरत ने चीखते हुए कहा। एकदम से एक शोर बर्पा हो गया। तमाम औरतें खौफ के मारे चीखने लगीं। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया। आपसे किसने कहा कि ये मर गई हैं? ये करीबुल मर्ग थीं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के दिल की धड़कन और सांस कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, मगर वो मरता नहीं है, मौत के करीब चला जाता है। ये जिंदा हैं और कुछ घंटों के लिए इनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसा कि इनको मौत आ गई हो। इनकी ये हालत दर्द और तकलीफ की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने बताया तो हम सबके औसान खता हो गए। काफी कमजोर दिल औरतें तो वहीं पर सुनकर बेहोश हो गईं, खौफ के मारे। थोड़ी देर बाद ही सायरा ने आंखें खोल दी। अब वो मुकम्मल होश में आ चुकी थी। रात को ही सरफराज को सायरा की मौत की खबर मिल गई थी और वो रवाना हो चुका था। थोड़ी देर में सरफराज रोता हुआ दाखिल हुआ तो सबने इसे खुशखबरी सुनाई कि इसकी बीवी जिंदा है। अब मेरा परेशानी से बुरा हाल था, क्योंकि सायरा मेरा असली रूप देख चुकी थी। सायरा, तुम जिंदा हो, ये मुआजिजा कैसे हो गया? सरफराज ने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा। तो डॉक्टर ने सरफराज से कहा कि ऐसा होता है, इसे नियर टू डेथ कहते हैं। इस हालत में इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन कुछ घंटों के लिए वो मुर्दा तस्वुर किया जाता है। फिर इसके जिस्म में हरकत होती है। वो मरा हुआ नहीं होता, सिर्फ मौत के करीब चला जाता है। आपकी बीवी के साथ भी यही हुआ, और वो इसलिए हुआ कि वो सदमे में और दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गई थी। मुबारक हो, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने सरफराज से कहा। तो वो खुश हो गया, सवाए मेरे। अब मुझे यही परेशानी थी कि सायरा सारी हकीकत बता देगी सरफराज को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सायरा ने सरफराज से मेरी कोई शिकायत नहीं की, बस शिकायती नजरों से मेरी तरफ देखती रहती थी हर वक्त। मैं सारा दिन उदास रहने लगी थी। सरफराज मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ गया था। इस दौरान मेरी छोटी बेटी बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि इसे खून का कैंसर है और वो मरने वाली है। ये खबर सुनकर मुझ पर तो जैसे क्यामत ही टूट पड़ी। वो मेरी सबसे छोटी बेटी थी और मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी। चाची कहते हैं, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। आपने मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाना था सो बचा लिया। जो लोग दूसरों के हक में गड़ा खोदते हैं, अक्सर खुद ही इस गड़े में गिर जाते हैं। एक दिन सायरा ने मुझसे ये कहा तो मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुमने मुझे बददुआ दी है? मैंने रोते हुए कहा, नहीं, मैंने आपको कोई बददुआ नहीं दी, लेकिन खुदा तो देख रहा है ना। किसी और की बेटी की जान लेना चाहती थी आप, और अब अपनी ही बेटी की जान से हाथ धोने पड़ रहे हैं। इसे कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज होती है। आपने क्या सोचा था कि मैं मर जाऊंगी और आप और आपकी बेटियां हमेशा जिंदा रहेंगी इस दुनिया में? सायरा ने कहा तो मैं रोने लगी। देखो, मुझे माफ कर दो, ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। आप अल्लाह से माफी मांगें। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, इनके खुद के साथ बुरा होता है। वो ये कहकर चली गई। इसकी बातों से लग रहा था कि इसका दिल मुझे माफ करने को नहीं चाह रहा। वो कैसे माफ करती? इसका बच्चा मेरी वजह से मर गया था। मैंने इसकी जान लेने की कोशिश की थी।